Hello friends. 2-3 days back when I was taking an online psychological test assessment, a very interesting question came from a candidate. He says कि सर जब मैं पिक्चरों को ऑब्जर्व करता हूँ और उसके ऊपर जब स्टोरी लिखता हूँ खासकर टीएटी में, और जब आप डिस्कस करते हो तो मेरे और आपके ऑब्जर्वेशन में इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है और ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका डिफरेंस का कारण वन, मोस्ट ऑफ यू आर नॉट ऑब्जर्विंग द गिवन टीएटी पिक्चर इन डेप्थ, मतलब देर इज़ अ शैलो ऑब्जर्वेशन, बड़े सतह पे ऑब्जर्व करते हो और बहुत सारी चीज़ों को आप मन ही उसको मन गढ़ंत चीज़ें घड़ लेता है, बैकग्राउंड नहीं देखते, डिटेल्स नहीं देखते, ड्रेस के बारे में नहीं देखते, बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाते हो। दैट इज़ वन। एंड नंबर टू, और खासकर दिस नंबर 2 पॉइंट इज एप्लीकेबल टू हिम ऑल्सो, इट इज़ कॉल्ड परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन। इसका मतलब है आज इंटरनेट का ज़माना है, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है कि आज सबसे बड़ा चैलेंज है कि सही क्या गलत क्या इसकी परख हम नहीं कर पाते। एंड कहीं ना कहीं हमें वो शॉर्टकट ढूंढने की इतनी आदत है कि हमारी सोच को वो इन्फ्लुएंस कर लेता है। इट इज़ कॉल्ड परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन। तो मैं उस लड़के का जो क्वेश्चन है उसको आई विल कवर इट थ्रू दिस वीडियो एंड आई विल कवर 3 terms here. What is observation, what is perception and what is perceptual distortion. और हमें ये परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन को समझना पड़ेगा, उसे ठीक करना पड़ेगा ताकि हमारा ऑब्जर्वेशन में एक्यूरेसी आ जाएगा, परसेप्शन में क्लैरिटी आ जाएगा। सो परसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, तब आपका जाके टीएटी का रिस्पॉन्स ठीक हो जाएगा। तो इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा थ्रू दिस वीडियो। Before that, let me give you the details of the AFSOP offline classes which is conducted at Nagpur. The registration for the August and September batches are open right now. The August batches are from 7th August to 19th August 2023, and for the September it is 4th September to 16th September 2023. So these classes will be conducted at Sahas, the camp at Nagpur, and it is a fully residential program. For more details you can call me or WhatsApp me at 9090099035 and I'll share you the details. The registration is open. There are only one batch each month as of now, so kindly register fast. इसके अलावा AFSOP online classes are also available, and in this full psychological test assessment is available where your entire TAT, WAT, SRT will be analyzed one-to-one, face-to-face with you over the Zoom meeting, and intercorrelation यानी congruence between these 4 tests will be established, and also personal interview is available online. GTO as of now is not available, and video recording of the same will be made available to you if you feel that's a requirement. And the date and time you can choose as per your convenience. And for registering you can call us at again the same number 9090099035. So let's come back to the topic for today: observation, perception and perceptual distortion. In order to understand, let's take an example. Look at this picture. So when psychologist presents you this picture, you are supposed to observe this picture using your sense perception, in this case your eyes, है ना। So observation का definition है, observation skills refers to the ability to use all 5 of your senses: eyes, ears, tongue, skin, और एक क्या है, nose, है ना। Senses to recognize, analyze and recall your surrounding. In this case, while observing TAT, the only one sense input that is used is your eyes. आप अपने आँखों से इसे ऑब्जर्व करते हो, और जब अब इस पिक्चर को जब ऑब्जर्व करते हो तो आपको क्या दिख रहा है कि यू सी देयर इज़ अ लेडी सिटिंग नेक्स्ट टू अ बॉडी, प्रॉबेबली अ डेड बॉडी, जो कि ज़मीन पर रखा हुआ है, एंड शी इज़ वीपिंग। घर के अंदर का सीन लग रहा है, दीवार दिख रहा है 2 साइड का, एक दरवाज़ा भी दिख रहा है, और क्लियरली दिख रहा है कि एक बॉडी को नीचे ज़मीन पे लिटा के रखा हुआ है। सो ये आँखों से इनपुट अंदर गया है। अभी बॉडी मेल है फीमेल है ये सब पता नहीं चल रहा। द लेडी इज़ वेयरिंग अ साड़ी एंड सिर को अपने घुटनों के बीच में लगा के रो रही है। एज मे बी 45-50 के बीच में हो सकता है उनका, लेडी का। दिस पिक्चर इज ऑब्जर्व, और इसमें आपने कौन सा सेंस परसेप्शन यूज़ किया? आँखों को।
सो जो 30 सेकेंड TAT में मिलता है दैट इज़ फॉर ऑब्जर्वेशन, एंड ऑब्जर्वेशन रेफर्स टू द एबिलिटी टू यूज योर सेंस परसेप्शन, सेंस ऑर्गन्स टू रिकग्नाइज, एनालाइज एंड रिकॉल योर सराउंडिंग। और सराउंडिंग मतलब जीवन के दायरे के अंदर और एक्सपीरियंस के दायरे के अंदर उसको ऑब्जर्व करना। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज परसेप्शन। नाउ परसेप्शन ऑब्जर्वेशन के बाद होता है, परसेप्शन आपके दिमाग के अंदर होता है। ऑब्जर्वेशन आंखों से किया था, परसेप्शन दिमाग के अंदर है। सो परसेप्शन का डेफिनेशन है, परसेप्शन इज द ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन। सेंसरी इंफॉर्मेशन कहाँ से आया? आंखों से आया। और यहाँ पे क्या हो रहा है? उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसका आइडेंटिफिकेशन एंड उसका इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेंसरी इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट एंड अंडरस्टैंड द प्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन और एनवायरनमेंट। तो जो TAT का पिक्चर में आपको साइकोलॉजिस्ट ने प्रेजेंट किया, आंखें उसे ऑब्जर्व करेगा और वो ऑब्जर्व्ड इंफॉर्मेशन को आपके ब्रेन में, माइंड पे शिफ्ट करेगा और माइंड उसको परसीव करेगा परसेप्चुअल स्किल्स के साथ। सो इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेंसरी इंफॉर्मेशन। व्हाट वाज ऑब्जर्वेशन? एबिलिटी टू यूज योर सेंस ऑर्गन्स टू रिकॉग्नाइज, analyze and recall your surrounding, and perception is organizing, identification and interpretation of sensory information. किस लिए? In order to represent, understand and presented information or environment. Now जब आपका ये पिक्चर अंदर जाएगा और आप परसीव करोगे, अरे तो ये डेड बॉडी है, शायद इसका बेटा होगा, पति होगा, शायद उनका डेथ हो गया होगा, all those things are happening in your perception. Now the third term is perceptual distortion, और इसका डेफिनेशन है, परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन इज एन इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द परसेप्चुअल ऑकरेंस। क्या मतलब है? परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन होने से आप जो दिए हुए TAT के पिक्चर को, फॉर एग्जांपल मैं SSB के लिए बोल रहा हूँ, उसको वैसा नहीं देखते हो जैसे वो होता है, उसके अंदर कोई डिस्टॉर्शन आ जाता है। और ये क्यों होता है? इट ऑकर्स व्हेन अ पर्सन रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट शुड बी इन द नॉर्मल रिएक्शन। एक ओरिजिनल रिस्पॉन्स नहीं आता है बिकॉज अंदर कुछ डिस्टॉर्शंस होते हैं। तो जो दिखाया गया है और जो आप देखते हो उसके अंदर एक डिफरेंस आ जाता है। दिस डिस्टॉर्शन कैन रिलेट टू फिजिकल डैमेज टू द ब्रेन, साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्रग। अमूमन ये नॉर्मल लोगों को ये डिस्टॉर्शन क्यों होता है? क्योंकि उनका ब्रेन के अंदर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या ड्रग्स के क्या बोलते हैं, ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में करते हैं या ब्रेन में डैमेज हो जाता है। नाउ SSB में जो आते हैं वो तो ये केस नहीं होगा, तो SSB के लिए स्पेसिफिक प्रॉब्लम आता है। इन केस ऑफ SSB कैंडिडेट इट इज़ ड्यू टू रॉन्ग कोचिंग। तो SSB के कैंडिडेट्स में परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन रॉन्ग कोचिंग के कारण होता है। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। इसी लड़के का जो मैंने ऑनलाइन साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट के बारे में बताया, ये लड़का पहले दिल्ली में कहीं कोचिंग लिया है। तो उससे मैंने जब पूछा, यार ये तूने ऐसे सब क्यों लिख रहा है, तो पहले तो वो आनाकानी करता रहा। बाद में उसने मुझे बोला, सर ये देखो, मैं एक जगह पे मैंने ट्रेनिंग लिया था और मुझे उन्होंने ये बोला करके मुझे व्हाट्सअप भेजा। अब वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो व्हाट्सअप पढ़ता हूँ। He says, sir, in Dash Academy in Delhi, they told me to show this image, ये जो मैंने फोटो आपको दिखाया, as drama in college, because if we show lady is crying over dead body, that will show you have negative attitude towards life or negativity in your brain. तो लड़के को दिल्ली के एकेडमी ने क्या बोला कि इस डेड बॉडी को और जो वहाँ पे लेडी बैठ के रो रही है, इससे डेथ मत बताना, जबकि वो ऑब्जर्व कर रहा है, जबकि वो परसीव कर रहा है। लेकिन एक डिस्टॉर्शन डाल दिया कोचिंग वाले सर ने कि इसे डेथ नहीं दिखाना, बिकॉज इसे अगर आपने डेथ दिखा दिया तो SSB को लगेगा आपके ब्रेन के अंदर नेगेटिविटी है। मतलब जीवन के एक सत्य को, डेथ एक जीवन का सत्य है, उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना, उसको अवॉइड करो, और अवॉइड करने से आप भी पॉजिटिव हो जाओगे और आपको SSB सेलेक्ट कर लेगा। ऐसा एक एडवाइस दे दिया। आपको ये बात समझ में आ रहा तो कमेंट में लिख के बताना कि क्या समझ में आया। ओके, अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कोचिंग वाले सर का ये जो ट्रेनिंग था कि
don't show this lady is crying over the body because it will show you have a negative attitude towards life or negativity in your brain. इस इंफॉर्मेशन का आपके सोच के ऊपर एक गलत असर पड़ेगा. कैन यू टेल मी वो असर क्या पड़ेगा? उसके कारण क्या होगा, आंखों से जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है उसमें दिख रहा है कि एक डेड बॉडी है ज़मीन पर रखा हुआ है और बगल में एक लेडी रो रही है. ये आंखों से दिख रहा है. परसेप्शन में पता चल रहा है कि डेथ है और डेथ को डील करना है, लेकिन परसेप्शन में डिस्टॉर्शन आ गया क्योंकि कोचिंग वाले सर ने ये इनपुट दे दिया है. अब आपके दिमाग के अंदर दो इन्फॉर्मेशन चल रहा है, एक वो जो यथार्थ में है जो आपको आंखों से दिख रहा है और एक वो जो कि कोचिंग वाले सर ने बताया. नाउ आपके अंदर एक कश्मकश चल रहा है और क्योंकि आप रेकमेंड होना चाहते हो तो आप क्या करते हो, अपने ऑब्जर्वेशन को और अपने सही परसेप्शन को इग्नोर करते हो और इस पिक्चर को देखते हुए कि भी ये डेथ है और डेथ को डील करना है, आप उसे डेथ को हटा देते हो और उसे ड्रामा या कुछ और बना देते हो. तो मुझे बताना कि परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन क्या होता है और ये भी बताना कि आपके अंदर भी किसी टाइप का परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन तो नहीं हो रहा, क्योंकि आज इंटरनेट का ज़माना है, इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड है कि आपको सही और गलत क्या है वो पता ही नहीं चलेगा बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड है ना. हर बंदा वीडियो बना रहा है. तो मुझे बताना कि इस इंफॉर्मेशन का जो सर ने बोला, कोचिंग वाले सर ने दिल्ली के, इससे आपके दिमाग के ऊपर क्या असर पड़ेगा. एक्चुअली इससे आपका दिमाग हाईजैक हो जाएगा बिकॉज इस हाईजैक के कारण आप अपने ही ऑब्जर्वेशन को इग्नोर कर दोगे और अपने ही सही परसेप्शन को इग्नोर कर दोगे. और मैं इस पिक्चर के ऊपर एक कहानी दिखाता हूँ, उस कहानी को पढ़ना और पढ़ के मुझे आप कमेंट में बताना कि उस कहानी में कैन यू सी इम्पैक्ट ऑफ दिस परसेप्चुअल डिस्टॉर्शंस. अगर आ रहा है, दिख रहा है तो आप मुझे लिख के बताना क्या दिख रहा है. मैं उसको अभी यहाँ पे इवैल्यूएट नहीं करूँगा, लेकिन आप खुद ही समझ जाओगे. और अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आई विल रिक्वेस्ट यू, आप यूट्यूब से या कोचिंग से जहाँ से भी जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हो उसको ये चेक करना है कि वे आपके परसेप्शन को डिस्टॉर्ट तो नहीं कर रहा, क्योंकि अगर डिस्टॉर्ट कर दिया तो आप अपने इंफॉर्मेशन जो ऑब्जर्व करोगे उसको मैनिपुलेट कर दोगे, उससे आपका नुकसान हो जाएगा. तो क्या समझ में आया मुझे बताना.